اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، صراط مستقیم کی 46ویں قسط کے ساتھ آپ کا میزبان سخاوت حسین صدرالوی آپ تمام حضرات و خواتین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہے۔ عموماً سیٹرڈے کے دن ہم آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتے، اس لیے کہیں نہ کہیں مجلس جشن پڑھنے جاتے ہیں یا نکاح وغیرہ۔ آج کیونکہ ویدر کی وجہ سے مجلس کینسل ہو گئی ہے، اس لیے آج ہم آپ کی خدمت میں 46واں پروگرام کر رہے ہیں، اور آج کا پروگرام مختصر ہوگا۔ جمادی الاول کے مہینہ کے بارے میں آج ہمارا پروگرام ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جمادی الاول کو جمادی الاولی اور جمادی الاول دونوں طریقوں سے پڑھا گیا۔ حوزے میں جمادی الاولی پڑھا جاتا تھا، عامت الناس میں جمادی الاول۔ جماد یا جماعت جمادہ سے ہے کسی چیز کا منجمد ہونا۔ اس مہینے میں عموماً کیونکہ پانی ٹھنڈک کی وجہ سے جم جاتا تھا، اس لیے اس کو جمادی یا جمادی کہا جاتا ہے، اور یہ پہلا مہینہ تھا جس میں پانی جمتا تھا۔ ایک اور وجہ اس کی یہ لکھی گئی کہ اس مہینے میں عرب کے لوگ تالابوں میں پانی جمع کرتے تھے تاکہ وہ ریسٹ آف دا ایئر استعمال کریں۔ ایک وجہ یہ بھی لکھی گئی کہ عرب جنگ کی تیاری کرتے تھے تو پانی وغیرہ کو اسٹاک کر لیتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں اسے حنین، ختم اور انخ کے الفاظ سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ اس مہینے میں کچھ سگنیفیکنٹ ڈیٹس ہیں، ان میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بارے میں 2 روایتیں ہیں اس مہینے کی، یا 3 تاریخ کو ہے یا 15 تاریخ کو ہے۔ اگرچہ میری نظر میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت شعبان کی 5 تاریخ کو، ایران عراق میں بھی زیادہ شعبان ہی کی تاریخ منائی جاتی ہے۔ البتہ یہ 2 تاریخیں بھی درج ہیں کتب کے اندر۔ اس مہینے کی سگنیفیکنٹ ڈیٹس میں ایک 5 جمادی الاول ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے دور میں آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی تھی 5 کے دن۔ 13، 14، 15 3 ڈیٹس لکھی گئی، خاص طور پہ 13 اور 14 بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے میں، کیونکہ یا تو بی بی اپنے والد کی وفات کے بعد 75 دن زندہ رہیں یا 90 دن۔ 75 والی روایت مانی جائے تو 13 یا 14 تاریخ بنتی ہے۔ حوزہائے علمیہ نجف اور قم میں تینوں دن ایام فاطمیہ منائے جاتے ہیں۔ 15 جمادی الاول میں جیسے عرض کیا ہے، ایک روایت کے مطابق امام سجاد کی ولادت ہے، اور 15 ہی کو شہید اول محمد ابن جمال الدین مکی کی شہادت ہوئی، جنہوں نے کتاب لمعہ لکھی، اور 15 جمادی الاول کو ہی بصرہ میں مولا علی کو فتح نصیب ہوئی، اور جنگ جمل بھی 36 ہجری میں 15 جمادی الاول کو ہی فتح
याबी का शरफ मौला अली के चाहने वालों को मिला था। 29 जमादिउल अव्वल को इमाम ज़माना के एक नायब मोहम्मद इब्ने उस्मान की वफात है, जो बगदाद शरीफ में दफन है। गोया इस महीने में अयाम फातिमिया है। इन अयाम को 13 और 14 को कम से कम 2 दिन अकीदत व एहतराम से ताज़ियादारी में गुजारना चाहिए। और इन्हीं अयाम में ज़ियारत फातिमिया भी पढ़नी चाहिए। एक ज़ियारत है अस्सलामु अलैका या सय्यदता निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या वालिदतल हुज्जज अलन्नास अजमाइन, अस्सलामु अलैका अय्यतुहल मज़लूमतुल ममलूआ हक़्क़ुहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अमतिक वब्नत नबिय्यिक व ज़ौजत वस्सी नबिय्यिक सलातन तुज़लिफ़ुहा फ़ौक़ ज़ुल्फ़ा इबादिकल मुक़र्रमीन मिन अहलिल अर्ज़ीन। इसके बाद इस्तिग़फ़ार करें और जो दुआ मांगे अल्लाह कबूल फरमाता है। जैसा कि हर महीने की जुमेरात वगैरह में, जुमा में रोज़ा रखने का सवाब है, इस महीने में भी कम से कम 3 रोज़ा रखने की ताकीद मसनूना वारिद हुई है। 13, 14 और 15 को ख़ास तौर पर रोज़ा रखने की रिवायत वारिद हुई है। ये मुख्तसर सी बैकग्राउंड है जमादिउल अव्वल के महीने की, क्योंकि जमादिउल अव्वल का महीना आ गया है, तो इसमें अय्याम फातिमिया को ख़ास तौर पे मनाया जाए और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के यौम विलादत को भी, क्योंकि रिवायत में मौजूद है, मना लिया जाए। इसी तरीके से शहीद सानी की वफ़ात, नायब इमाम ज़माना की वफ़ात, बसरा की फतह, 36 में मौला अली को जंग में फतह हुई, इनको भी मनाना चाहिए और इस महीने में रोज़े भी रखने चाहिए। ज़ियारत फातिमिया की ताकीद की गई है, जिसके बाद इस्तिग़फ़ार करे और अल्लाह से बीबी फातिमा के सदक़े में दुआ मांगे, अल्लाह कबूल फरमाएगा। आज का हमारा प्रोग्राम ज़्यादा तवील नहीं होगा, चंद मिनट और हम आपकी खिदमत में मौजूद हैं। अगर कॉल करना चाहें 718-675-6987 पे आप कॉल कर सकते हैं। आज इसके बाद इंशाअल्लाह रिकॉर्डेड प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि जमादिउल अव्वल का महीना इस एतबार से मशहूर है कि अरब इसमें पानी जमा करते थे, बर्फ़ भी जम जाती थी। जौहड़ों तालाबों में जहाँ पानी मिलता अरब उसको स्टोर कर लेते थे। इसमें ख़ास जो डेट्स हैं वो अय्याम फातिमिया की हैं। अय्याम विलादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, ज़ियारत फातिमिया की, रोज़ा रखने की ताकीद है। मैंने अपनी किताब तोहफ़े दरवेश में तमाम साल के बारे में जो तफसीलात लिखी हैं वो हर महीने के आमाल वज़ाइफ इसमें मैंने दर्ज किए हैं। ये किताब जल्द छप रही है, आपकी खिदमत में छपने के बाद पेश की जा सकेगी। जंग जमल की फतह भी इसी महीने में हुई, 15 जमादिउल अव्वल को। फतेह बसरा भी 15 जमादिउल अव्वल को हुई। 29 को अबू जाफ़र मोहम्मद इब्ने उस्मान नायब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने वफ़ात पाई, जो बगदाद में दफन है। और 15 ही को शहीद अव्वल मोहम्मद इब्ने जमालुद्दीन मक्की की शहादत हुई। ज़ियारत भी आपकी खिदमत में अर्ज़ की जा चुकी है। इस महीने में क्योंकि अय्याम फातिमिया है,
दुरूद फातिमिया अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदा फीहा बेअदद मा अहात बिही इल्मुक कसरत से पढ़ते रहें ताकि अल्लाह करीम आप तमाम हज़रात व ख़वातीन मुझ समेत हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। इस महीने में यह भी कहूँगा कि अफसोस भी करना पड़ता है कि कायनात के सैयद व सरदार की बेटी की कब्र का कोई निशान ही नहीं। कितने अफसोस का मकाम है, मालूम ही नहीं है कि कब्र कहाँ है। जबकि आम लोगों के महल बनते हैं, मगर जिनके लिए कायनात बनी थी उस बीबी का कोई कब्र का निशान मौजूद नहीं। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी जी, मैं लाइव प्रोग्राम में बात कर सकती हूँ प्लीज? जी बात करें बहन, आप बात कर रही हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत ज्यादा सलाम करती हूँ और टीम को भी सलाम करती हूँ। मेहरबानी। और एक सवाल पूछना चाहती थी मैं आपसे बिस्मिल्लाह। कि एक मोमिन है और दूसरा मोमिन है जी। अब किसी वजह से नाराजगी है, मैं समझ सकती हूँ कि 3 दिन से ज्यादा एक मोमिन को दूसरे मोमिन से नाराज नहीं रहना चाहिए जितना मैं जानती हूँ। जी जी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले की जबान इतनी मतलब कि जहमत करती है, तो उनको थोड़ा सिखाने के लिए क्या 3 दिन से ज्यादा 4-5 दिन हम थोड़ा खामोश उनके साथ रह सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया बहन। बर्दाश्त करना ही चाहिए और बात कर लेनी चाहिए प्लीज। मैं अभी अर्ज करता हूँ, आप आवाज कर रही हैं ना? जी प्लीज आवाज करें, मैं आपके सवाल का जवाब अभी अर्ज करता हूँ। सिस्टर ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। अल्लाह करीम हमारी इन बहन को और तमाम बहनों को जिंदा और सलामत रखे। बहुत ही अच्छा सवाल है, टेक्निकल क्वेश्चन है फिक्र के बारे में। इसमें कोई शक नहीं कि हुजूर का इरशाद है कि मोमिन मोमिना को 72 घंटे के लिए दूसरे मोमिन या मोमिना से ताल्लुकात नहीं तोड़ने चाहिए। सिला रहमी में आता है। अगर कोई ज्यादा जबान दराज बंदा हो, गीबतें बहुत करता है, तोहमतें लगाता है या जबान दराज है, मुतकब्बिर है, उसको सजा देने के लिए शरीयत में बिल्कुल इजाजत है। 3 दिन क्या 3 महीने भी आप बात ना करें ताकि उसको सजा मिले और वो आइंदा ऐसी हरकत ना करे। बिल्कुल ये जायज़ है। बहुत शुक्रिया बहन, आपने इंटरेस्ट ली। तमाम बहनों भाइयों से मैं ये कहूँगा कि शरई मसाइल को पूछें और उन पर अमल करें। अल्लाह हम सब को शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक खैर मरहमत फरमाए। अलबत्ता जो कतर रहमी करते हैं, हुजूर ने फरमाया कि जन्नत की खुशबू 500 मील की मसाफत से आती है, मगर उसे नहीं आएगी जो कतर रहमी करे। तमाम मोमिनीन को, मोमिनात को ज़बानों पे कंट्रोल करना चाहिए, मोहब्बत प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ हदों को नहीं फलांगना चाहिए। हल्की फुल्की तनकीद अगर हो जाए, बारे खातिर ना हो तो कोई हर्ज नहीं, मगर तनकीद को भी शेवा ना बनाए। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर। जी फरमाइए। हमारा प्रोग्राम जमातुल अव्वल के बारे में है। जमातुल अव्वल के महीने के अमाल, वज़ाइफ, रोज़े, दुआ वगैरह हमने अर्ज़ की और बताया कि जमातुल अव्वल में अयाम फातिमिया है। आप कुछ फरमाना चाहेंगे? जी, कुछ खुसूसी इस बारे में कोई खुसूसी चीज़ें बताइए आप, कुछ खुसूसी दुआएं, खुसूसी। मेरे ख्याल में जमातुल अव्वल में बेहतरीन दुआ, बेहतरीन वजीफ़ा इस्तिग़ासा फातिमिया है कि आप बीबी फातिमा की नमाज पढ़ें और बीबी फातिमा की नमाज के बाद बीबी फातिमा के ज़रिए अल्लाह से
मसाइल के हल की सबील करें। मेरा ये अपना ज़ाती जी तजुर्बा और मुशाहिदा है। जो लोग बीबी फातिमा की मजालिस अज़ा को अक़ीदत व एहतराम के साथ मुनअक़िद करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को हल कर देता है। माशाअल्लाह। जैसा कि 8 मार्च को अलमहदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में इंशाल्लाह मजलिस हो रही है बीबी फातिमा ज़हरा की शहादत की। 5 मार्च को मैं पढ़ रहा हूँ इदारा जाफरिया में। 6 मार्च को पढ़ रहा हूँ इमाम महदी सेंटर बाल्टीमोर में। 7 मार्च को पढ़ रहा हूँ बाबुल इल्म मस्जिद डेलावेयर में। 8 मार्च को इंशाअल्लाह ठीक 7 बजे मजलिस शुरू होगी अलमहदी सेंटर में। कोई भी मोमिन मोमिना इस मजलिस को स्पॉन्सर करना चाहे, जिसका कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है। आजकल तो हमने सामने रेस्टोरेंट वालों से बात कर ली है, तो आजकल खर्चा बहुत कम हो गया है। तो कोई भी बिरादर मोमिन या ख़ाहर मोमिना इसको स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। बेहतरीन अमल जो हमारे भाई साहब पूछ रहे हैं जमादुल अव्वल में, वो ये है कि आप बीबी फातिमा के ज़रिए अल्लाह से दुआ करें। बीबी फातिमा का जिक्र करके, बीबी फातिमा की नमाज, बीबी फातिमा का दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक, इसको पढ़ें। और अभी जो मैंने ज़ियारत पढ़ी थी अस्सलामु अलैका या फातिमा, ये ज़ियारत पढ़ी जाए। और ज़ियारत नाहिया में भी एक ज़ियारत है जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं, जिनमें एक लफ्ज़ ये आता है कि मेरा उस दादी पे सलाम अल मकसूरत अज़लाहा, जिसके पहलू की पसलियाँ टूट गई थीं। तो इस तरीके से मजालिस अज़ा मुनक़िद करें और बच्चों में बैठ के, घर वालों में बैठ के बीवी पाक का तज़किरा करें। बीवी पाक अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ करें। बीवी पाक के नाम की नियाज का एहतमाम करें। मजालिस अज़ा को स्पॉन्सर करें। अल्लाह करीम हम सब के मसाइल को हल फरमाएगा। और कुछ फरमाना चाहेंगे? पढ़नी चाहिए जी। कितने रकात? 4 रकत है। 4 रकात जी। जी। वो मेरी किताब जो है तोहफ़े दरवेश, इसमें तफसील से दर्ज है, और तोहफ़तुल इस्लाम फिल मसाइल वल आकाम में भी दर्ज है, खुद तोहफ़तुल अवाम में भी है, मफातिहुल जिनान के अंदर भी है। तो इस नमाज को आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से इस्तिफ़ादा कर लें। अल्लाह करीम हम सब की मुश्किलात को बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के सदक़े में हल फरमाए। आमीन। और कुछ फरमाना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके उम्र दराज़ी, आपके मरहूमीन को। अभी थोड़ी देर पहले बुलंद करे। आपसे पहले एक सिस्टर की कॉल आई थी, तो मैं चाहता हूं कि उसको ज़रा मैं रिपीट कर दूं। उन बहन ने बताया कि बाज़ लोग दिल दुखाते हैं, बाज़ लोग गलत तंग करते हैं, अजियत देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आया 3 दिन के बाद भी हम ताल्लुकात तोड़ सकते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि लोगों को सोचना चाहिए, जो किसी को अजियत देगा, ग़ीबत करेगा, बुरा भला कहेगा, अजियत देगा, तकलीफ देगा, अल्लाह ताला उसको कब्र में सांपों और बिच्छुओं से डसवाएगा। बीमारियां लगती हैं, दुनिया में भी बीमारियां लगती हैं। तो हमारे भाई बहनों को चाहिए कि वो ज़रा सोच विचार करें। और अगर 3 दिन से ज़्यादा भी ताल्लुकात ना रखना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। अल्लाह सलामत रखे। और भी कोई बिरादर मोमिन या ख़ाहर मोमिना कॉल करना चाहें तो बेशक कॉल कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे पर्सनल फ़ोन पे कॉल्स करते हैं, तो उनसे दरख्वास्त है कि ज़रा मेहरबानी फरमाकर आपने अगर कॉल करनी है तो आप 718-675-6987 पर कॉल फरमाएं। ये लाइव प्रोग्राम है सिरात मुस्तकीम का 46वां। दरअसल 46वां प्रोग्राम तो हमारा था जो हमने शुहदा के लिए किया था,
जो पेशावर में शहीद हुए थे 25, मगर वो किसी वजह से म्यूट हो गया है, एरेज हो गया है, तो उसकी जगह आज 26वां प्रोग्राम है। दुआ करता हूँ जितने भी शहीद हुए हैं अल्लाह ताला उनको 46वां जो प्रोग्राम है ये उसका सब्स्टिट्यूट है, समझ लें। जितने भी शहीद हुए हैं पेशावर के अंदर, शिकारपुर में, रावलपिंडी में, अल्लाह ताला उन सब को जन्नत में जगह दे और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। अगर आप कॉल करना चाहें, जमाती लेवल के बारे में कुछ पूछना चाहें, तो हमारी लाइंस ओपन है। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलैकुम सलाम। जी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो डॉक्टर मेरा सवाल ये है कि हज़रत फातिमा ज़हरा की शहादत का दिन कौन सा है? बहुत शुक्रिया। आप कौन बोल रही? हुमैरा हुमैरा। मैरीलैंड से। हुमैरा ने मैरीलैंड से कॉल की है और बड़ा अच्छा सवाल ये किया है कि आप ये बताएं कि बीबी फातिमा की शहादत का दिन कौन सा है। बहुत शुक्रिया, आप वाच करती रहे, मैं अभी आपको जवाब अर्ज करता हूँ। जवाब ये है कि बीबी फातिमा की जो शहादत है वो हुजूर पाक की वफ़ात के बाद, हुजूर की दुनिया से जाने के बाद, या तो 75 दिन के बाद हुई है या 90 दिन के बाद। तो उमूमन ये समझा जाता है कि या 13 को है, 13 जमादुल अव्वल को, या 3 जमादुल सानी को। लोग इसलिए 2-3 दिन भी मना लेते हैं कि न मालूम जो चांद होता है, चांद कितने का, 29 का है या 30 का है। हमारा दिन जहाँ तक ताल्लुक है दिनों का, वो बिल्कुल कन्फर्म है कि या 75 दिन थे या 90 दिन। हुजूर की वफ़ात हुई है 28 सफ़र को। तो अब आप इसमें ये बना लें कि 28 सफ़र को अगर हुजूर की वफ़ात हुई हो तो बीच में रबीउल अव्वल गुजरा, रबीउल सानी गुजरा। इनके मिसाल के तौर पर अगर एक 30 का हो, एक 29 का हो, तो 59 दिन ये बन गए। सफ़र का अगर 29 का है तो एक दिन वहाँ से आ गया, 60 हो गए। और अगर 30 का है तो 61 हो गए। और 14 को फिर बीबी की शहादत बनती है। या अगर 29 के 2 हों तो फिर 13 को। तो इस तरीके से 13 या 14, बाद ने तो खैर 15 भी लिखी है। और उधर से भी 3 जमाती उस्सानी 90 दिन का, बाज यकम 2 3 भी मना लेते हैं, उसी इख्तलाफ की वजह से जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। तो 2 तारीख़ें बीबी की शहादत की मशहूर हैं, जमातुल अव्वल की 13 या जमातुल सानी की 3। बहुत शुक्रिया, आपने इंटरेस्ट ली, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफ़ा फरमाए। और बीबी फातिमा की जो शहादत का महीना शुरू हुआ है, दुआ करता हूँ इस बीबी की शहादत के सदक़े में आज जिन 2 बहनों ने कॉल की, एक भाई ने कॉल की, अल्लाह ताला इन सब बहनों बच्चियों की हवाइज शरइया और भाइयों की हवाइज शरइया को पूरा फरमाए। आज का प्रोग्राम ज़्यादा तवील नहीं होगा। अगर एक आध कॉल और आ गई तो चंद मिनट और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, वरना मैं आपसे इजाज़त लूँगा। उमूमन सैटरडे को हमारा प्रोग्राम नहीं होता। मौलाना वसीम अब्बास साहब इंशाअल्लाह अगले सैटरडे से 7 से 9 बजे अपना प्रोग्राम किया करेंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मौलाना वसीम अब्बास को तौफीक खैर दे कि वो इस सिलसिले को आगे चला सके। और माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम 7 से 9 काफ़ी पॉपुलर जा रहे हैं। उनके अलावा भी माशाल्लाह जो ताज़ा एक प्रोग्राम शुरू हुआ है राशिद जैदी का, जिन्होंने 2 प्रोग्राम किए हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे प्रोग्राम किए हैं।
करंट अफेयर्स विद राशिद जैदी। 2 प्रोग्राम आए हैं। कोई भी आलिम आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा मैं ही रहूं। अब जाहिर है कि मैं इत्तेफाक से आज कैंसलेशन की वजह से मैं अवेलेबल था तो मैं उनकी पकड़ में आ गया, वरना दीगर उलमा को भी वो ले आएंगे और राशिद जैदी एक बेहतरीन प्रोग्राम करेंगे। हमारी बहन नीलम बुखारी साहिबा भी इंशाल्लाह ह्यूस्टन से जल्द प्रोग्राम शुरू करेंगी और मिसेज रफत मिर्ज़ा भी, डॉक्टर अंदलीब ज़हरा एक प्रोग्राम करती हैं, वो आजकल पाकिस्तान गई हुई हैं, वापस आ जाएं तो वो प्रोग्राम भी इंशाल्लाह ख़वातीन के लिए शुरू हो जाएगा। हम बच्चों के प्रोग्राम भी करना चाहते हैं, यूथ के प्रोग्राम भी करना चाहते हैं। दरस कुरान भी आता है, आप देखते हैं माशाल्लाह। सखावतुल कुरान कल सुबह 6:15 बजे ठीक आएगा, पौने घंटे का, आज भी आया था अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से 3 से 6 हर संडे को हमारा मदरसतुल कुरान और संडे स्कूल होता है। आप खुद भी बैठे, बच्चों को भी बिठाएं, कापी पेंसिल लेके बैठे या डब कर लें, रिकॉर्ड कर लें। 6 से 7 हमारा दरस कुरान आता है जो सूरह मोमिन तक पहुंच चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत ऑनलाइन प्रोफेसर राजा हसन रज़ा करते हैं। हमारे जवेद हुसैन साहब शिया लिंक का प्रोग्राम करते हैं। हमारे अब्बास किलानी साहब आपके सितारे का प्रोग्राम करते हैं। हमारे प्रोग्राम काफ़ी माशाल्लाह पॉपुलर हो रहे हैं। आप हज़रात व ख़वातीन से गुजारिश है कि हमारे साथ तामुन भी करें, हमारे मेंबर भी बने। $1 पर डे की मेंबरशिप, आप खुम्स के ज़रिए भी हमारी मदद कर सकते हैं। व्यूअरशिप बढ़ रही है, मैं बड़ा ममनून हूँ माशाल्लाह। आपने देखा जद्दा, पाकिस्तान, यूके, इटली, आज इटली से भी एक मैसेज आया है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, मुख्तलिफ मकामात से लोग देख रहे हैं। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम। मैं हूँ नईम, बात कर रही हूँ मैरीलैंड से। कैसी आप, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। मैंने ये पूछना था जी। कि हजरत फातिमा का रोजा मुबारक कहाँ है? बहुत शुक्रिया, आवाज करें, अभी अर्ज करता हूँ। देखिए ये मासूमाना सवाल है, एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब कैसे हैं? जी बहन आप बताएं। ठीक है माशाल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र। मैं आपने ये बीबी सैयदा सलामुल्लाह की मजलिस के लिए जो बोला है, तो मैं आपको $200 का चेक भेज देती हूँ ना? ठीक है बहन, ठीक है। अल्लाह जज़ाए खैर। माशाल्लाह बहुत आपके ये जो प्रोग्राम है और कुछ जो पिछले वीक के भी रिपीट में मैंने देख सकी थी, देखे, बहुत अच्छे हैं बड़ी और मेहरबानी। बहुत ज्यादा उससे हमें फायदा था। और अल्लाह ताला आपको भी, अल्लाह ताला मियाँ मोहम्मद हुसैन साहब को भी और अल्लाह आपके बच्चों को भी जिंदा और सलामत रखे। बहुत शुक्रगुजार है आज बहन। वो देख रहे थे तो उन्होंने जो लास्ट में बात की थी कि भी वो मशीन से जो कटरा होता है एक तो उसकी साइड में, और लास्ट में जो बताया था कि फिर वो गर्म पानी में फेंक देते हैं, वो कह रहे मौलाना ने तो उसका जवाब नहीं दिया। मैंने कहा उनकी कॉल आ गई थी, शायद वो जहन से निकल गया। नहीं मैंने अर्ज किया है, बिल्कुल मैंने बता दिया है। उसके बाद अगर गर्म पानी में फेंक देते अगर गर्म पानी में फेंक दें, उसी तरह उसके पेट में सब कुछ होता है। नहीं वो हलाल तो हो गया। अगर वो हलाल हो गया है और गर्म पानी में फेंक दिया है तो जब उसको पकाया जाएगा तो दोबारा उसको साफ किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, साफ करना तो जरूरी है, बिल्कुल दुरुस्त जी। अल्लाह ताला सलामत रखे। बहुत मेहरबानी, आपके इंटरेस्ट का भी, मियाँ साहब का भी शुक्रिया। असल में बाज़ औक़ात बहन ऐसे होता है कि कॉल्स आ जाती हैं या फिर टाइम ख़त्म हो जाता है या फिर जब दूसरा बंदा प्रोग्राम कर रहा होता है तो उसको भी टाइम देना होता है। एक ये मजबूरी भी है। बड़ा अच्छा कि आपने मुतवज्जे कर दिया। ऐसे आप मुतवज्जे कर देंगे तो हम हाजिर खिदमत हैं, बिल्कुल सिचुएशन क्लैरिफाई कर देंगे। नहीं आज बाई चांस वो भी घर में थे तो ठीक है, बहुत उन्होंने कहा कि मैं भी क्वेश्चन कर लेता। आज इतवार से बाई चांस मैं भी फारिग हूँ, वरना सैटरडे तो मैं कभी फारिग नहीं होता हूँ, बाहर जाता हूँ। तो मैं आज असल में एक मजलिस कैंसिल हो गई
लॉन्ग आइलैंड में, क्योंकि वेदर यहाँ पर तूफान आया हुआ है, तो हम फिर यहाँ पे भी बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल 6 इंच से तो ज्यादा पड़ चुकी है हमारे एरिया। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत के तूफानों से हम सबको महफूज और मसूर रखे। बहुत शुक्रिया, याद रखे। बहुत मेहरबानी बहन आबदा हुसैन, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आबदा हुसैन ने माशाअल्लाह $200 के लिए फरमा दिया है, अल्लाह करीम इनको जज़ा दे और इनके तमाम घर वालों को बीबी पाक के सदक़े में इनकी तमाम हाजतें पूरी हों। मैंने तो अभी खैर कोई अपील भी नहीं की थी, मैंने तो वैसे कहा था कोई बहन भाई स्पॉन्सर करना चाहे तो चलिए, पार्शली स्पॉन्सर हो गया है, तकरीबन $500 का खर्चा है, तो माशाल्लाह $200 बहन आबदा हुसैन ने मजलिस के लिए दे दिया है। इंशाअल्लाह और भी अल्लाह करेगा कोई ना कोई बहन भाई, माशाल्लाह अब तक तो हमारा अलमहदी फाउंडेशन का कारवां कभी भी स्टक नहीं हुआ, आइंदा भी नहीं होगा। और आपको खुशी की खबर देता चलूँ, एक हमारी सुन्नी बहन ने, अल्लाह उनको सलामत रखे, $4500 मुझे दिया है कल, और उसके साथ मैंने कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद कमाई की थी, तो टोटल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह $9,500 का उधार कल उतार दिया है अलमहदी टीवी का। तो अलमहदी टीवी के कर्ज़े तकरीबन ख़त्म हो रहे हैं। अब हमारा $4500 का जादू वालों का कर्जा है, क्योंकि अब हम उन्हें अभी तक दे नहीं सके हैं, तो 45 का ये हमारे ऊपर और कर्जा आ गया है, और इस 45 को छोड़ दें तो अब हमारा तकरीबन 20,000 कर्जा बच गया है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह 4500 अगर आजकल में मैं कमा लेता हूँ या आ जाता है, क्योंकि मैं कुछ मजदूरी भी कर लेता हूँ तो कमा लेता हूँ, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह, या आप में से कोई मदद करना चाहे तो अब टोटल 20,000 बच गए हैं अल्लाह के फजल करम से। तकरीबन कर्ज आपकी दुआओं से 80,000 प्लस का कर्जा था और 60,000 का हो गया है। इसमें 10 से 12,000 मेरे भाइयों का भी है, बहनों का भी है, और बाकी मैंने खुद मेहनत की है, रात दिन आजकल मेहनत कर रहा हूँ, बल्कि ज़ियारत के सफ़र पे नहीं गया हूँ। मैंने कहा कि इंशाल्लाह इमाम हुसैन की बारगाह में उस वक्त जाऊँगा कि जब कर्ज नहीं होगा। इंशाल्लाह अप्रैल तक उम्मीदवार हूँ कि कर्ज ख़त्म हो जाए, बल्कि मार्च तक, तो अप्रैल में इंशाल्लाह इमाम हुसैन की ज़ियारत पे चला जाऊँगा। आप हज़रात व ख़वातीन का शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत लोग देख रहे हैं, व्यूअरशिप बहुत बढ़ गई है। हमारी कोशिश ये होगी कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम बफ़ज़ल रब्बी तकरीबन जो 7 से 9 है, इसको हम चाहते हैं डेली बेसिस पर ऐसा कर दें कि 7 से 9 बजे सब लोग हमें लाइव देख सकें, या मैं आऊँ या मौलाना वसीम अब्बास या हमारे और एंकर्स। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दोबारा हाजिर हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे वालिद के नाम से मजलिस में मैं भी कुछ हिस्सा डालूं। बहुत शुक्रिया बहन, अल्लाह सलामत रखे आपको। लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे भेजूं, मैं न्यूयॉर्क में नहीं रहती हूँ। ठीक है बहन, ऐसा है कि आप मेहरबानी फरमाइएगा, जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाए आप हमें एक कॉल कर लीजिएगा, कॉल करके हमें अपना नंबर भी दे दीजिएगा। तो उसके बाद, उसके अलावा अभी मैं आपको एड्रेस अभी बता देता हूँ और टाइप भी किया जाता है। आप इस एड्रेस पर अपना डोनेशन भेज दें। कोई और भी भाई बहन अलमहदी फाउंडेशन नोट फरमा लीजिए, ALMAHDI अलमहदी। वो मैं स्क्रीन से मैं ले रही हूँ, वो ले लीजिए स्क्रीन से। हाँ, और आप डोनेशन भेज दें और अपने वालिद साहब का नाम लिख दें ताकि हम उनके लिए फातिहा पढ़ा दें। उनकी मेमोरियल डे था, कल था उनका दिन। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनका नाम क्या था? उनका नाम था फिदा हुसैन कमाल भाई मोमिन। उनके वालिद का नाम क्या था? उनके वालिद का नाम था कमाल भाई, उनका खुद का नाम था फिदा हुसैन। ठीक है जी, समझ आ गई। कमाल भाई मोमिन। अल्लाह ताला फिदा हुसैन कमाल भाई इब्ने कमाल भाई सूरह फातिहा की रिक्वेस्ट करूंगी। मैं अभी पढ़ता हूँ, अभी आप आवाज करती रहे, मेरी रिक्वेस्ट है। अभी मैं पढ़ता हूँ और इंशाअल्लाह उस दिन भी पढ़ा दूंगा बहन आबदा हुसैन के, मियाँ मोहम्मद हुसैन के मरहूमीन के लिए भी, और इंशाअल्लाह आप के वालिद साहब फिदा हुसैन कमाल भाई इब्ने कमाल भाई के लिए भी मैं फातिहा पढ़ा दूंगा। अभी मैं फातिहा पढ़ाता हूँ आपके मरहूमीन के लिए।
اور پھر میں آپ کو پروگرام کے بعد دوبارہ جی کر ہاں، لوں گی. اللہ سلامت رکھے. شکریہ ہماری سسٹر نے جنہوں نے پہلے بھی کال کی تھی، ماشاءاللہ دوبارہ کال کی ہے، اور انہوں نے اپنے والد کا نام بھی بتایا ہے جن کی کل سالگرہ تھی. تو سب سے پہلے تو میں فدا حسین کمال بھائی ابن کمال بھائی کے لیے فاتحہ پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پروردگار اس سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا ثواب فدا حسین کمال بھائی ابن کمال بھائی کو ایصال فرما، ان کے صغائر و کبائر سے درگزر فرما. محترم ناظرین و ناظرات، اگر آپ حضرات و خواتین بھی بے شک پروگرام کے دوران چاہتے ہوں کہ آپ کے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھا جائے تو یہ المہدی ٹی وی آپ کا چینل ہے. آپ جب حکم فرمائیں گے آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی. آپ اپنے پیاروں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے کوئی نہ کوئی پروجیکٹ بھی اسپانسر کر سکتے ہیں. مثلا میرے بھائی، میرے کزن حاجی ملک محمد اختر صاحب نے $4500 سے ہمیں ایک اکوپمنٹ خرید کر کے دیا تھا مکسر کا، کہ اگر 3-4 کیمرے ہوں تو ان کو مکس کر کے پروگرام کیا جائے. اس سلسلے میں ڈاکٹر علی رضوی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے، ان کی والدہ بلقیس رضوی کو جنت میں جگہ دے، ان کے والد صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور مہدی اور قاسم کو اللہ شفا دے جو ان کے بچے ہیں، ان کی بیگم کو، ان کی ہمشیرہ، ان کے تمام اعزاء و اقربا کو اللہ صحت و سلامتی سے رکھے. انہوں نے مثلا ایک کیمرہ ہمیں خرید کر دیا تھا. تو ہمارے پاس اس وقت ٹوٹل 2 کیمرے ہیں. ایک کیمرہ انہوں نے مہربانی فرمائی تھی، اور ایک کیمرہ ہمارے ڈاکٹر سید نجم کاظمی نے خرید کر دیا. ہم چاہتے ہیں 2 کیمرے ہمیں اور مل جائیں. تو اس سلسلے میں بھی آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں. پہلے یہ کیمرہ جب ڈاکٹر نجم نے، ڈاکٹر علی رضوی نے خرید کے دیا تھا تو اس وقت یہ کیمرہ $5000 کا تھا. آج وہی کیمرہ جس کیمرے سے ہم بہترین پروگرام 2-3 کیمرے رکھ کے بھی کر سکتے ہیں یا ہم فیلڈ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ ٹوٹل 1000 پر آ گیا. یعنی ایک اور کیمرہ ہے جو یہی فنکشن کرتا ہے. تو اب آسان ہو گیا ہے. کوئی بھی بھائی بہن 1-2 کیمرہ اپنے مرحومین کے لیے خرید کے دینا چاہے، ہمارے جو بلز ہوتے ہیں ماہانہ 6000 کا ہمارا بل ہوتا ہے، وہ کوئی اپنے مرحومین کے لیے، ہم پورا مہینہ ان کے مرحومین کے نام لکھنے کو تیار ہیں. پٹی چل جائے گی کہ ان کے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھا جائے. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ بی بی فاطمہ کی جو مجلس ہے اس کی اسپانسرشپ آ رہی ہے. اس کا 500 تبرک کا خرچہ ہے. اگر 100 افراد شریک ہوں تو 500 خرچہ ہے. اگر 200 افراد شریک ہوں تو 1000 خرچہ ہے. اب معلوم نہیں آج کل کے ویدر کے اعتبار سے، پہلے تو ہماری یہ تقریباً روٹین رہی ہے کہ 200 سے کم لوگ بی بی فاطمہ کی مجلس میں نہیں آتے رہے. انشاءاللہ میں امیدوار ہوں کہ 200 سے بھی زیادہ آئیں. انشاءاللہ میں ہمارے بھائی بہن مل کر اسپانسر کریں گے، ورنہ میں خود حاضر ہوں. انشاءاللہ میں جتنا بچ جائے گا میں اسپانسرشپ کرنے کو تیار ہوں. یہاں پر المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں جو پروجیکٹ چلتے ہیں اس میں بھی آپ مدد کر سکتے ہیں. مثلا بچوں کا اسکول ہوتا ہے، ان بچوں کے لیے آپ لنچ کا اہتمام کریں تو ہم ان تمام بچوں سے آپ کے لیے، مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھوائیں. یا مثلا درس قرآن کے بعد ہم ڈنر دیتے ہیں، کوئی دے نہ دے میں خود دیتا ہوں، اس سلسلے میں آپ مدد کر سکتے ہیں. کل راولپنڈی کے جو شہید ہیں
उनके लिए मजलिस हो रही है। इस सिलसिले में हमें तबरुक वगैरह की ज़रूरत होती है। कोई भी हमारा भाई बहन हमारे साथ ताउन करना चाहे किसी प्रोजेक्ट में तो करें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। माशाल्लाह हमारा प्रोग्राम बेहद कामयाब रहा, हालांकि अनएक्सपेक्टेड था, मुख्तसर भी रहा, मगर बेहम्दुलिल्लाह भाई बहनों ने बहुत ही इंटरेस्ट ली है। और मैं समझता हूँ कि दिन ब दिन हमारी जो व्यूअरशिप है उसमें इजाफा हो रहा है। जो लोग अपना नाम न बताना चाहें बेशक अपना नाम भी न बताएं, कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं। अलमहदी टीवी आपका टीवी है, ये आपके बच्चों की हिफाजत के लिए है, नस्ल बचाने के लिए, हम सब के आक़िबत बखैर का सामान करने के लिए। ये मोहम्मद व आले मोहम्मद की वकालत का चैनल है, ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मैसेज को आम करने का चैनल है, ये शिया सुन्नी इत्तेहाद का चैनल है, ये अमन का चैनल है, ये सलामती का चैनल है, ये वज़ाइफ व औरात का चैनल है, ये लोगों को कुरान का खादिम मोहम्मद व आले मोहम्मद का ग़ुलाम बनाने वाला चैनल है। हम क़ुर्बतन इल्लल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह खुलूस दिल के साथ आपकी खिदमत कर रहे हैं। मैंने आज तक एक सेंट अल्हम्दुलिल्लाह ना अलमहदी टीवी से लिया है, ना आइंदा लेने का कोई इरादा है। मैं अपनी मेहनत मजदूरी करता हूँ, ना ही कोई मेरा बच्चा या मेरा अजीज़ या मेरा शागिर्द यहाँ से कोई पैसा लेता है। आपका जो भी फंड होगा वो प्रोजेक्ट में जाएगा। आइए अलमहदी टीवी से ताउन कीजिए। जमादुल अव्वल का महीना बीबी फातिमा का महीना है। बीबी फातिमा के महीने में इस टीवी चैनल के कर्ज़े अदा कीजिए, मेंबरशिप लीजिए, बीबी फातिमा की मजालिस को स्पॉन्सर कीजिए। बीबी फातिमा की वो औलादें, वो सैयदादियाँ जो हमारे यतीम खाने और बेवगान सेंटर में कसम पुरसी के आलम में हैं, जिनके पास सर्दियों गर्मियों के कपड़े नहीं, उनके लिए आप आगे आए। हमारी बहन आबदा हुसैन ने मेहरबानी की थी, हमारे भाई अनवार जाफरी ने मेहरबानी की थी। एक सैयदजादी बच्ची बेवा जो हमारी यतीम खाना की बच्ची थी, उसके लिए शादी हो रही है उसकी मार्च के अवाइल में, और बेहम्दुलिल्लाह इन्होंने थोड़ा बहुत गिफ्ट रवाना फरमाया, वो उन तक पहुंच चुका है। और भी जिन भाई बहनों ने हमें यतीमों बेवगान के लिए जो कुछ भी दिया है, हमने गरीबों यतीमों बेवगान तक उसको पहुंचा दिया है। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदा व सलामत रखे। जितने भी मराकज़ दीन हैं, उलमाए किराम हैं जो खिदमत कर रहे हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अल्लाह सबको ज़िंदा हो सलामत रखे। इस दुआ के साथ कि बीबी फातिमा की शहादत के इस महीने में आप बीबी फातिमा का जिक्र भी करेंगे, बीबी फातिमा का तवस्सुल भी करेंगे, नमाज फातिमा भी पढ़ेंगे और दुरूद फातिमिया भी पढ़ेंगे, और बीबी पाक के नाम पर बीबी पाक की औलाद के लिए खर्च करने में दरेग भी नहीं करेंगे। इसी के साथ आपका खादिम आज की हद तक आपसे इजाज़त चाहता है। कल सुबह 6:15 बजे फिर हाजिर होऊंगा सखावतुल कुरान के साथ। कल 51वां दर्स है, और कल 3 से 6 बजे बच्चों के स्कूल में हाजिर होऊंगा। 6 से 7 बजे, 6 बजे नमाज है, इंशाल्लाह 6:30 से 7:30 दर्स कुरान होगा। 7:30 से 8:30 शुहदाए रावलपिंडी के लिए मजलिस होगी। 9 बजे तक प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होगा। कोशिश होगी कि मंडे से 7 से 9 कोई ना कोई लाइव हमारा प्रोग्राम आपकी खिदमत में आए। मैं फ़िलहाल एवरी वेडनेसडे, एवरी फ्राइडे खिदमत में बाकायदा आता हूँ, और संडे तो सारा दिन मैं आपकी खिदमत में रहता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा हाफिज़ नासिर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।